So, Assalamualaikum class. Today, what we are going to do study is chapter number 6, Ecosystems and Evolution. The Florida Everglades. The Everglades, a river of grass in the southernmost part of Florida, is a vast expanse of predominantly sawgrass wetlands dotted with small islands of trees. It is a heaven for wildlife, including alligators, snakes, panthers, otters, raccoons, and thousands of birds. The Everglades today is about half its original size of 1.6 million hectares and suffers from many serious environmental problems. Wading bird populations have dropped 93% since 1930, and the area is now home to 50 endangered and threatened species. Invasive predator species, including Burmese python, former pets, decimate some prey populations. More than 70 years of engineering projects aimed at protecting the human population from storm related flooding have reduced the quantity of water flowing into the Everglades, restricting the natural recharging process there. Food control measures created dry spaces that were then converted to agricultural or residential use, fragmented wildlife habitats, and polluting the water that has entered. The Everglades will never return completely to its original condition because there are now too many cities and sugar plantations in the region. However, state and federal governments are working together on the massive, comprehensive Everglades restoration plan to eventually restore a more natural water flow to the area, repel invasive invasions of foreign species, and re-establish native species. So let's discuss what are the Earth's major biomes. ठीक है ना? So उससे पहले आपको ये पता चाहिए कि biome होता क्या है. So a biome is a large, relatively distinct territorial region with similar climate, soil, plants, and animals, regardless of where it occurs in the world. ठीक है ना? So Earth has many different climates. उसके अंदर कोई long term weather patterns के साथ जो एक particular area होगा, वो biome कह सकते हैं उसे हम. For example के जहां पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एक डिफरेंट टाइप की टेरिटरी स्टार्ट हो रही है, ये एक डिफरेंट टाइप का मतलब एक एरिया स्टार्ट हो रहा है जिसकी सिमिलर क्लाइमेट होगा, जिसके अंदर सॉइल और प्लांट्स और इस तरह से एनिमल्स जो हैं वो भी सिमिलर होंगे. और ये फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के किस पार्ट में है. ठीक है ना? बड़ा क्लियरली पता चलेगा कि ये एक पर्टिकुलर बायोम है. ठीक है, आगे मैं भी आपको जो बायोम्स दिखाऊंगा आपको उसका आइडिया हो जाएगा. ओके, मे बी इन वर्ड से आपको समझ ना आए बिकॉज यू डू नॉट स्टडी एनी ऑफ दीज थिंग्स बिफोर, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी थी तो मे बी उसमें थोड़ा सा पढ़ा हो. सो जी वर्ल्ड के टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैं फिगर 6.1 के अंदर. यू कैन सी ऑल दोज. Although sharp boundaries are shown in this highly simplified map, biomes actually grade together at their boundaries. Use the legend below to identify the location of the different biomes. तो ये different biomes आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर में है वो टंड्राज हैं. इसके अलावा ये बोरील फॉरेस्ट हैं. ये टंड्राज क्या है? ये बेसिकली फुल बर्फ से ढके हुए एरियाज है मोस्टली. देन कम्स इन दी बोरील फॉरेस्ट. ये बोरील फॉरेस्ट हैं सारे ब्राउन वाले, लाइट ब्राउन. देन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो हैं ये ग्रीन से डिनोट किए गए हैं. देन कम्स इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स. तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स लाइट ग्रीन के अंदर हैं. ये ग्रासलैंड होंगे, बिल्कुल वेजिटेशन होगी यहाँ पर, मतलब ग्रास तरह की. यहाँ पर ट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा जंगल नहीं होगा. चैपरल्स. ठीक है, ये चैपरल्स हैं यहाँ पर, ये जो लाइटिश पर्पलिश सा कलर है, लाइक दीज. ठीक है, इस तरह से डेजर्ट्स हैं. सो ऑल दीज आर डेजर्ट्स right here. Similarly,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं जो बिल्कुल ग्रीन के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन सी ये ड्राई फॉरेस्ट हैं यहाँ पर। देन कम्स इन द सवानाज, यहाँ पर ये अफ्रीकन सवाना आ गया, ये सवाना आ गया, यहाँ सवाना है, ठीक है। देन कम्स इन द माउंटेन्स विद कॉम्प्लेक्स जोनेशंस, ठीक है ना, कि जहाँ पर कॉम्प्लेक्स जोनेशंस हैं वो माउंटेन रेंजेस है। ओके, फिगर 6.2 के अंदर आप देख सकते हैं हाउ क्लाइमेट शेप्स टेरेस्ट्रियल बायोम्स, ठीक है। तो क्लाइमेट किस तरह से एक बायोम को शेप करता है। So two climate factors, temperate and precipitation have a two climate factors, temperature and precipitation have a predominant effect on biome distribution, ठीक है ना। तो दो फैक्टर्स की वजह से बायोम की डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होती है, एक टेम्परेचर और दूसरा बारिश, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में जहां भी डिस्कस करूंगा इसका मतलब बारिश होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर और बारिश की वजह से कोई भी बायोम डिस्टिंक्ट हो जाता है कि ये पर्टिकुलर इस तरह का बायोम होगा। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं अलास्का का टंड्रा। At high latitudes, temperature is more important than precipitation in shaping biomes, as mean annual temperature declines poleward, ठीक है ना, कि जब भी मीन एनुअल टेम्परेचर होगा वो तकरीबन पोल्स की तरफ, क्योंकि पोल्स ठंडे होते हैं तो ठंडा ही होगा, इसलिए यूजुअली ये एरियाज ठंडे ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कि इनकी बारिश के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। यहाँ ज्यादा बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है टेम्परेचर, तो यहाँ यूजुअली टेम्परेचर कम ही रहता है। मूविंग ऑन, ये देख सकते हैं आपके कोस्टा रिका का जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इन टेम्परेचर टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल जोन्स precipitation is more important than temperature in shaping biomes। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये एक मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया हुआ है कि आखिर पोल्स के ऊपर जब सबसे ज्यादा गर्मी है वहां इवेपोरेशन भी आप कह रहे हैं हो रही है, तो फिर वहीं पर रेन फॉरेस्ट क्यों है, वहां पर तो गर्मी थी, वहां पर बारिश इतनी ज्यादा क्यों होती है। यू सी, ये एरियाज हैं जहां पर टेम्परेचर एक मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर जरूरी है क्योंकि उससे वाटर इवेपोरेट होएगा और उसकी वजह से जब अगेन बारिश होगी कंडेंस होकर वाटर, तो बेसिक यहाँ का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ की रेनफॉल। इन एरियाज में रेनफॉल ज्यादा होती है, इस रेनफॉल की वजह से यहाँ पर जो है रेन फॉरेस्ट बन जाते हैं। इसी तरह से एरिजोना का डेजर्ट जो है वो बायोम डिफर इन दी रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन दे रिसीव एंड इन दी सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब ये एक ऐसा बायोम है जहां पर बारिश जो है वो रिलेटिवली कम भी होती है और कुछ सीजनल होती है, दैट इज इट्स अ डेजर्ट। अब बेसिक इसका जो पूरी रूलिंग है वो आप इसके ये डिफरेंट जो बायोम्स हैं ये कैसे होते हैं, ये किस एरिया में होते हैं, ये आप इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर देख सकते हैं। इफ यू लुक एट इट, सबसे ऊपर इसके अंदर टंड्रा आता है क्योंकि ये कोल्ड है, ठीक है ना। अब ये बेसिकली कोल्ड, वेट, ड्राई और आर्कटिक और ट्रॉपिक्स के दरमियान का एक लिंक है कि अपवर्ड जो है वो आर्कटिक और कोल्ड होगा। नीचे की तरफ इस कॉर्नर के अंदर जो आप देखेंगे रेड वाले में, यहाँ पर टेम्परेचर हॉट होता जाएगा और लेकिन वेट होता जाएगा, हॉट के साथ बारिश भी होती है। जबकि इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये नीचे वाला जो भी एरिया होगा ये हॉट तो होगा, लेकिन ये ट्रॉपिक्स की तरफ चला जाएगा और ये ड्राई होगा, ठीक है। सो आर्कटिक जो है ये यूजुअली कोल्ड होता है और ये जो एरिया कोल्ड है यहाँ पर आपको देखेंगे कि टंड्राज आपको मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े आपको कुछ चीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर बहुत गिर जाता है तो प्लांट्स कुड नॉट सर्वाइव, तो छोटे प्लांट्स, ग्रास और इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो ऊपर से जम जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर जब नीचे से जैसे ही टेम्परेचर वापस ठीक होता है तो उनकी रूट से वो दोबारा से स्प्राउट कर जाते हैं। तो यहाँ को बहुत बड़े बड़े ट्रीज टाइप के आपको नहीं मिलेंगे, जैसे ही आपने अलास्का वाला देखा था। सॉरी, मूविंग ऑन, द बोरील फॉरेस्ट। अब इसके बाद जो एक चीज आती है जहां पर कोल्ड यूजुअली होंगे, ठीक है, लेकिन उतना कोल्ड नहीं होंगे, ये थोड़े से उस एरियाज के अंदर है जो कि बिल्कुल आर्टिक से नीचे के वाला एरियाज है, ऑन दी लैटिट्यूड्स, ठीक है। यहां पर आपको मिलेंगे बोरील फॉरेस्ट।
बोरील फॉरेस्ट की मैं एग्जांपल आपको अभी आगे शेयर करता हूँ कोई। अभी मुझे बोरील फॉरेस्ट याद नहीं है। बोरील बेसिकली है रशिया के अंदर, साइबेरिया के अंदर है, कनाडा के अंदर हैं ये फॉरेस्ट। तो ये तो मुझे पता है, तो ये मैं आपको फोटो दिखाऊंगा आगे तो यू विल गेट एन आइडिया। ये यूजुअली अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने बनाए हुए ये पाइन शेप्ड होते हैं। ये ऊपर से जरा दे हैव अ, यू कैन से पिरामिड टाइप शेप, क्योंकि इसके ऊपर जब स्नो गिरे तो वो नीचे गिर जाए और ट्री को स्नो के वेट के साथ ही टूट ना जाए ट्री। तो ये बोरील फॉरेस्ट होते हैं। इसके बाद के नीचे के बायोम के अंदर जहां टेम्परेचर जरा वार्म होने लग जाता है, उस एरियाज के अंदर जो है स्पेशली वार्म टेम्परेचर के अंदर, अगेन वेट से ड्राई के अंदर ये वेरी करता है। जो वेट एरियाज हैं और वार्म है वहां पर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, कि एक रीजनेबल रेन होती है वहां पर और थोड़ा सा हॉट भी है, तो वो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट होते हैं। देन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जैसे जैसे रेन कम होती जाती है जिन एरियाज के अंदर वहां पर टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं। और फिर और कम रेन वाले एरियाज के अंदर बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं और चैपरल्स होते हैं। चैपरल छोटी छोटी झाड़ियां बुशें, जब और पानी का मुझे ड्राई होते जाए बिल्कुल ही तो घास भी नहीं हो सकता, तो फिर छोटी छोटी झाड़ियां जैसे उग जाती हैं। जैसे कि ये पहले अगर आप देखें अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कई जो हमारे पास जो ग्राउंड्स क्लियर नहीं हुए, साफ नहीं किए गए, स्ट्रेट नहीं किए गए, वहां यूजुअली चैपरल्स ही हैं इस तरह से, वो बहुत सारी झाड़ियां झाड़ियां बहुत सारी पड़ी होंगी, तो वो चैपरल्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टेम्परेट डेजर्ट्स आते हैं, जब बिल्कुल ही ड्राई हो जाए, बिल्कुल ड्राई एरिया की तरफ आप चले जाओ तो फिर बिल्कुल डेजर्ट हो जाता है, वहां पर कोई चीज भी नहीं उगती, कैक्टस वगैरह मुश्किल से। मूविंग फॉरवर्ड जब इससे भी हॉट टेम्परेचर के अंदर जब आप रेंज में जाते हैं और वहां पर बारिश अच्छी खासी हो रही हो, जैसे कि ब्राजील वगैरह हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और इस तरह के एरियाज के अंदर आपको, और इस तरह से इंडोनेशिया मलेशिया ये एरियाज हो गए, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है लेकिन ये हॉट भी ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर बारिश जिस एरियाज में कम होती है वहां पर आपको ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं, वहां पर ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट होंगे, लेकिन ये कंपैरेटिवली उस तरह के डेंस नहीं होंगे जिस तरह का एक रेन फॉरेस्ट डेंस होता है। क्योंकि रेन फॉरेस्ट इज सो डेंस कि वो आपने अगर वो वीडियो देखी हो पूरी कंप्लीट, जो कि मुझे उम्मीद है कि किसी ने नहीं देखी होगी, उसके अंदर यू कैन सी कि वो जो कैनोपी दिखाती है आपको ऊपर अमेजन रेन फॉरेस्ट की, और वो बताती है कि जी इतना ऊपर अभी डे है, फुल सनलाइट आ रही है, इतनी गर्मी है, लेकिन जरा सी भी सनलाइट इट्स थिक कैनोपी ऑफ ट्रीज को पेनिट्रेट करके नीचे ग्राउंड पे नहीं आती। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की एग्जांपल है। तो इस तरह से जब ड्राई ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट आ जाएगा तो वहां पर थोड़ी बहुत लाइट आने लग जाएगी नीचे इस तरह से। और फिर इसके बाद सवाना आ जाता है, जब और ड्राई हो जाता है तो सवाना ऐसे होता है जैसे अफ्रीकन सवाना है। वहां गर्मी तो है लेकिन वहां बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती, तो वहां सवाना बन गया, बीच बीच में ट्रीज होंगे, बीच बीच में खुला ग्रासलैंड भी होगा। तो जैसे जहां पर आप अक्सर ना एलिफेंट्स वगैरह को चलते देखते हैं, आप अगर ये नेशनल ज्योग्राफिक पे भी देखें तो कहीं कहीं ट्रीज हैं, बाकी जगह पर खुला एरिया है, जिराफ्स और एलिफेंट्स जैसे एनिमल्स वहां पर आपको अक्सर नजर आते हैं। देन कम्स इन दी मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट। ये वो डेजर्ट है जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ ना कुछ मॉइस्चर, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बारिश कभी कभी हो जाती है, तो वो जैसे चैप्टर होते हैं उस तरह की एक एनवायरनमेंट बन जाती है, थोड़े बहुत कुछ बुशेस वगैरह उग जाते हैं। एंड देन कम्स इन दी ड्राई ट्रॉपिकल डेजर्ट, जो बिल्कुल ड्राई है, जहां पर कुछ नहीं उगता, लाइक कैक्टस वगैरह मुश्किल से, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो बहुत ड्राई हैं, हॉट भी हैं और बहुत ड्राई भी हैं। सो दिस इज व्हाट मेक्स अप अर्थ बायोम्स। अब आपको इससे ये तो समझ आ गई होगी कि मैंने आपको बताया था कि आप बिल्कुल इजीली एक बायोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ उसको देख के कि हाँ ये एक नई चीज शुरू हो गई है, ये वो चीज नहीं है जो हम पहले देख रहे थे अभी तक। तो बायोम्स को बड़ा इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ओके, फिगर 6.3 के अंदर आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लैंड कवर टाइप्स, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर किस तरह का लैंड कवर है। सिमिलर वेजिटेशन टाइप्स कैन अकर एट मेनी डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है ना, कि एक वेजिटेशन कई डिफरेंट लोकेशंस पे हो सकती है। जैसे कि ग्लोबल लैंड कवर कंपोजिशन, अब इसके अंदर तीन टाइप बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ फॉर्म्स, वुडी, हर्बीवोरस या फिर बेयर, इस तरह से लीफ की टाइप है कि किस तरह के नीडल है या ब्रेड ब्रॉड है, इस तरह से लीफ की ड्यूरेशन कितनी है, एवरग्रीन रहता है या डिक्लाइन होता है।
इस तरह से ये अगर आप देखें तो एवरग्रीन नीडल लीफ फॉरेस्ट है, जो कि बिल्कुल एवरग्रीन भी रहते हैं और ये नीडल टाइप के इसके लीव्स होते हैं। और ये एवरग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है कि जो तकरीबन ग्रीन ही रहता है और ये ब्रॉड लीफ होता है। अब आपको इस डायग्राम के अंदर, ये भी अगले पेज पे भी कंटिन्यूड होगी, ये देख लें, इसके अंदर ये डिफरेंट एरियाज बताए हुए हैं कि एवरग्रीन नीडल लीफ कहाँ पर है, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ कहाँ पर है, डिसिडुअस नीडल लीफ कहाँ पर है, ऑल दीज कैटेगरीज, ग्रासलैंड्स कहाँ पर हैं। सो ये अगेन अगेन आप ये चीज इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये फोटो से आप देख सकते हैं इजीली कि ये डेसिडस नीडल लीफ फॉरेस्ट हैं। ये जो फॉरेस्ट है ये 60% ऑफ लैंड को कवर करती है। इस तरह से डेसिडस ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट जो है, मोर देन 60% ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाय अ फॉरेस्ट, जो उसकी कैनोपी होती है उससे जो नीचे का लैंड होता है वो 60% कवर्ड होता है। देन कम्स इन द मिक्स्ड फॉरेस्ट, जहां पर मिक्स्ड ट्रीज होते हैं हर तरह के, तो बोथ नीडल एंड डिसिडुअस टाइप्स ऑफ ट्रीज अपेयर यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह से वुडलैंड्स होते हैं जहां पर लैंड हैज हर्बेक्यूस और वुडी अंडरस्टोरी, ठीक है, यहाँ पर ट्रीज एक्सीड 5 meters। देन कम्स इन द वुडी ग्रासलैंड्स, यहाँ पर भी अगेन मैं ट्रीज होते हैं कहीं कहीं पर बीच बीच में और बाकी ग्रासलैंड होता है। बेसिकली ऐसे जैसे कि कहीं कहीं पर बीच बीच में ट्रीज हो। मूविंग ऑन, द क्लोज्ड श्रबलैंड, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली श्रब्स होंगी, जहां पर आप अगर देखेंगे दूर दूर से यहाँ पर श्रब्स ही श्रब्स हैं। देन यू कैन सी दी ओपन श्रबलैंड, कि ये ओपन श्रबलैंड है। श्रब्स जो है वो डोमिनेट करती हैं लेकिन 2 मीटर से एक्सीड नहीं करती इन हाइट। देन कम्स इन दी ग्रास लैंड्स, कि जहां पर बेसिकली ग्रास वगैरह होता है, ये अफ्रीका के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, ये जब लाइन्स हंट वगैरह कर रहे होते हैं तो इस तरह के ग्रास लैंड्स में कर रहे होते हैं। ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स को सपोर्ट कर सकता है। देन क्रॉपलैंड, यू हैव ऑल सीन के क्रॉप्स किस तरह से हम ह्यूमंस उगाते हैं, ये क्रॉपलैंड्स हैं। देन बोरीन डेजर्ट्स, ठीक है, ये बैरन डेजर्ट्स हैं। तो यूजुअली इन बैरन डेजर्ट्स की जो क्वालिटी है वो ये कि इनके अंदर लैंड पे 10% से ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती, मैक्सिमम 10% तक होती है। और बिल्ट अप अगेन सिटीज का जो बिल्टअप हमने किया हुआ है ओवर लैंड। एंड देन द बैरन पोलर आइस कैप्स, जो भी तकरीबन बैरन होती हैं उनके ऊपर और कुछ चीज उगती नहीं है मोस्टली, क्योंकि इट्स ऑलवेज फ्रोजन 24/7, ऑल डेज अ ईयर। So the Arctic tundra figure 6.4 के अंदर आप देख सकते हैं, because of the tundra's short growing season and permafrost, only small herby plants grow in the northwestern biome that encircle the Arctic Ocean. Photographed in the Yucatan Territory of Canada, the Ogilvy Mountains are in the background. Climate graph shows monthly temperature lines and precipitation bars for Fort Yukon, Alaska. So you can see this, that freezing point है 0 degree Celsius. So usually there is a time during the winters when this temperature falls below 0 degree Celsius. So this is the time when this whole area is under ice. It is all frozen under permafrost. तो जो ऊपर की वेजिटेशन इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये इसलिए यहाँ पर शॉर्ट ग्रोइंग सीजन वाली ही चीजें उगती हैं और वो थोड़ी देर देर में ग्रो कर जाती हैं। जैसे ही समर आता है वो वापस अपने आप को ग्रो करती हैं रूट से और फिर उग के सारे स्प्रेड हो जाती हैं। इस तरह से ये वेजिटेशन आ जाती है और विंटर आते ही ये सब फ्रीज हो जाता है। अब ऊपर हम ये सारा कुछ डिस्कस तो कर चुके हैं, एक बार मैं इनकी आपको डेफिनेशंस वगैरह बताता हूँ, आपको एक मेजर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज अ टंड्रा। ठीक है, टंड्रा या आर्कटिक टंड्रा बेसिकली, क्योंकि आर्कटिक के पास वाले एरियाज ही हैं ज्यादातर, इसलिए आर्कटिक टंड्रा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, सो व्हाट इज अ टंड्रा? टंड्रा होता है द ट्रीलेस बोइम इन द फार नॉर्थ दैट कंसिस्ट ऑफ बोगी प्लेन्स कवर्ड बाय लिचन्स एंड मोजेस। उसके अलावा इट हैज हार्श कोल्ड विंटर्स एंड एक्सट्रीमली शॉर्ट समर्स। ठीक है, तो ये बड़ा कोल्ड विंटर होता है और हार्श होता है, और उसके अलावा जो समर होता है वो काफी शॉर्ट होता है, जैसे कि इसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल अभी शेयर कर दी है। Moving to the next one, the boreal forests. Okay, the boreal forests is a region of coniferous forests such as pine, spruce,
इस तरह से। फिर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये यूजुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर होता है, लोकेटेड जस्ट साउथ ऑफ द टंड्रा, आल्सो कॉल्ड टाइगा। ठीक है, ये साउथ ऑफ द टंड्रा बिल्कुल, यानी मैंने बताया था कि आर्कटिक सर्कल के करीब पहले, सबसे पहले वो जो है टंड्रा आता है, और टंड्रा के बाद बोरील फॉरेस्ट आ जाती है। ठीक है, ये तकरीबन यही है कि काफी कोल्ड होता है, और ये बस उसके बाद वाले बायोम के अंदर ये बोरील फॉरेस्ट आपको नजर आएंगे। इस तरह के होते हैं बोरील फॉरेस्ट। ये बोरील फॉरेस्ट कनाडा का है, यहाँ पर पिक्चर किया गया है जो। अगेन यू कैन सी कि यहाँ पर भी विंटर्स काफी हार्श हैं, और शॉर्ट जो होता है तकरीबन आपके होता है समर। लेकिन ये जो ट्रीज हैं, ये बेसिकली अपने कलर को इस तरह से चेंज करके और लीव्स को शेड करके अपना ये गुजारा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ टेम्परेचर उतना ठंडा नहीं होता कि पूरी बर्फ जम जाए और सब कुछ ऊपर से वेजिटेशन खत्म हो जाए। मूविंग ऑन, द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ओके, अब टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो है वो कॉनिफरस होते हैं ये। ठीक है, कॉनिफरस बायोम विद कूल वेदर। ठीक है, यहाँ पर वेदर कूल होता है, डेंस फॉग होती है, एंड हाई प्रेसिपिटेशन होती है, अच्छी खासी बारिश होती है। ठीक है, और ये जो है इस तरह का कुछ नजर आता है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। The temperate biome has large amounts of precipitation, photographed in the Hoh rainforest in Washington state. Climate graph shows monthly temperature and precipitation. तो इसके एस्टाकेडा ओरेगन के अंदर ये देखें अगर आप, तो यूजुअली फ्रोजन से नीचे नहीं जाता, यूजुअली उससे ऊपर ही रहता है, और ये हॉट होता है, और यहाँ पर अच्छी खासी रह चुकी है। आप ये रेन भी देख सकते हैं, नीचे नीचे आपको ये रेन का भी पूरा चार्ट मिल जाता है सबके अंदर। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर भी रेन दी हुई है, और इसके अंदर भी यू सी द रेन फॉल एनुअल। मूविंग फॉरवर्ड, the temperate deciduous forest, a forest biome that occurs in temperate areas where annual precipitation ranges from about 75 सेंटीमीटर to 150 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 30 से 60 इंच के दरमियान जहां बारिश होती है, उस एरिया के अंदर जो एक टेम्परेट एरिया के अंदर जो फॉरेस्ट होता है, उसे कहते हैं हम टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। यू कैन सी दिस ओवर हियर। The broad-leaf trees that dominate this biome are deciduous and shed their leaves before winter. Photographed in Germany Valley, West Virginia. Climate graph shows monthly temperatures and precipitation for Nashville, Tennessee. ये नेशविल टेनेसी का आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर अगेन 0 डिग्री सेल्सियस नीचे नहीं जाता, और अच्छी खासी बारिश होती है ओवरऑल। Then comes in the temperate grasslands, a grassland with hot summers, cold winters, and less rainfall than is found in the temperate deciduous forest biomes. ठीक है ना, तो deciduous से कम रेनफॉल वाला एरिया होता है, कोल्ड विंटर होते हैं, हॉट समर होता है, रेनफॉल कम होती है। यू कैन सी दिस के कुछ हद तक नीचे चला जाता है टेम्परेचर, और फिर यूजुअली समर जैसे काफी लंबा रहता है और हॉट रहता है, एंड देन इट फॉल्स बैक अगेन, और अच्छी रेन हो जाती है समर्स के दौरान। ये टेम्परेट ग्रास आप देख सकते हैं कि बाइसन ग्रेस करें ऑन अ मिक्स ग्रास पैच इन कस्टर स्टेट पार्क, साउथर्न डकोटा के अंदर। चैपरल्स, ओके, अ चैपरल इज अ बायोम विद माइल्ड मॉइस्ट विंटर्स एंड हॉट ड्राई समर्स। ठीक है, वेजिटेशन इज टिपिकली स्मॉल लीव्ड एंड एवरग्रीन श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज। सो यू कैन सी ओवर हियर, इस तरह के चैपरल्स होते हैं। ठीक है ना, कि स्मॉल लीव एवरग्रीन श्रब होती हैं चैपरल्स की। तो इस टाइप की वेजिटेशन होती है। आप ये देख सकते हैं अक्सर यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको इस तरह की वेजिटेशन मिल जाएगी, जहां पर अभी लैंड क्लियर नहीं किया गया, इसी टाइप की वेजिटेशन होती है। तो चैपरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑफ drought resisting evergreen shrubs and small trees. Hot dry summers and mild rainy winters characterize the chapel. ये जो है ये कैलिफोर्निया से फोटो ली गई है चैपल की। यू कैन सी द टेम्परेचर के यूजुअली अबव ही रहता है, और रेनफॉल भी होती रहती है। ओके, इसको हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं, मैं जरा इसको कंप्लीट कर लूं आपके टाइप्स को। सो डेजर्ट, अ डेजर्ट बायोम, बायोम इन विच द लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन लिमिट्स प्लांट ग्रोथ। डेजर्ट्स आर फाउंड इन बोथ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ये जो बेसिकली बारिश ना होने की वजह से जो प्लांट ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और ये तकरीबन जो है हर तरह के एरिया में पाए जाते हैं, टेम्परेट में भी और ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर भी। लेकिन यहाँ बस फैक्टर ये है कि बारिश बहुत कम होती है, इसलिए ये डेजर्ट्स होते हैं।
सो यू कैन सी ओवर हियर कि बारिश बहुत कम होती है, और इसका बेसिकली टेम्परेचर से ज्यादा बारिश के साथ लिंक होता है कि बारिश बहुत कम हो रही होती है। अदरवाइज ये देखें यहाँ टेम्परेचर जीरो से भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि डेजर्ट्स कैन एक्चुअली भी कूलर एट टाइम्स ओवरनाइट और इस तरह से विंटर्स के अंदर, बट लेकिन वहां पर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वहां बारिश बहुत कम होती है। दैट इज वाई डेजर्ट इज डिफाइंड बाय द लैक ऑफ वाटर और लैक ऑफ मॉइस्चर। This desert landscape includes tough-leaved yuccas and spine-covered prickly pear cacti. Desert inhabitants are strikingly adapted to the demands of their environment. Photographed near Sedona, Arizona. Climate graph आपको इसको प्रोवाइड किया गया है रीनो नवाडा का। Then the savannas, a tropical grassland with widely scattered trees or clumps of trees. इसको हम कहते हैं सवाना। इसी तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि एक्चुअली अ लश स्पीशी रिच फॉरेस्ट बायोम है दैट अकर्स वेयर द क्लाइमेट इज वार्म एंड मॉइस्ट थ्रू आउट द ईयर। तो जहां पर वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट होगा थ्रू आउट द ईयर, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, जहां पर अच्छी खासी बारिश होती है। सो आप ये सवाना देख सकते हैं, दिस इज द अफ्रीकन सवाना। फिगर 6.11 के अंदर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सच एज दिस वन विद वाइडली स्कैटर्ड एकेकिया trees support large herds of grazing animals and their herds of grazing animals and their predators. ये किलामंजारो नेशनल पार्क है तंजानिया के अंदर, और माउंट किलामंजारो के साथ ये आप पीछे माउंट किलामंजारो भी देख सकते हैं। सो दिस इज सवाना, जहां पर कुछ कुछ ट्रीज होते हैं और इस तरह एलिफेंट्स और आपको जिराफ्स वगैरह मिल जाते हैं इन एरियाज के अंदर, और लाइंस यहाँ पर छुपकर हंटिंग भी कर रहे होते हैं दूसरे एनिमल्स।